Yeah, hello everyone. This is Shivansh, and I believe you guys won't know me because the last video I recorded and uploaded on YouTube was around 5 years back when I was in my college doing a BTech degree, and it was on a topic related to how you can configure a website or configure EC2 instance on AWS. And the topic of today's video is completely different from that. So, yeah, why am I recording this video? Because first, I have a permanent work from home. I have a lot of time to think about things going around myself and things that bother me. And today, I felt that I'm a hypocrite and I thought I should be accountable to it and I should record a video and maybe rant about it to the whole crowd. So yeah, that is why I'm recording this, and hopefully I'll upload it. I'm not 100% sure I'll be doing that, but yeah, let's see. So I don't have a agenda for this meeting. Like I just randomly thought that I should record a video. I just noted down like a few points that I'll be discussing today. It's like completely random and not planned as such. The topics would be around my home state, which is Jharkhand, and like why I feel I'm a hypocrite and how I came to that realization today. So yeah, today I was just scrolling in Instagram reels and I saw a reel where a girl was saying that if you don't know about Jharkhand, then that is not something you should be proud of, because that means you are not aware of your own country, your geography is weak, and you must know about Jharkhand because it's a state in India and everyone should know about it. So I belong to Jharkhand. I come from a city called Ranchi in Jharkhand, and I'll tell you a secret about everyone who is from Jharkhand or from Ranchi and are living in Bangalore. So the secret is that it is very hard for us to introduce ourselves, because when we do so, no one would understand from where we belong to. No one would know what Ranchi means or what Jharkhand means unless we give a reference of MS Dhoni, or maybe like today we have Ishan Kishan as well, and I'm hoping and rooting that he becomes big enough that we can use his name as well as a reference to introduce ourselves. But if we leave these 2 3 figures from Jharkhand, there is nothing much to talk about that particular state. And the hypocrisy is that I have been ranting all throughout my life about how Bangalore has a bad infrastructure, how the traffic sucks in Bangalore. And like I have a permanent work from home, as I said, and I do have a bike, and my friends own a car in the city. And I keep saying that I don't like driving my bike in the city, like riding my bike in the city. And I asked them, like, how do you guys drive your car in the city provided there's so much traffic? And it's not fun at all. So, and like recently I went to 2 international trip, one in Krabi and the other one in Sri Lanka. And like the last trip was in Sri Lanka, and my perception around Sri Lanka was that it is a country in ruins. They have a debt issue, and India is helping them recover from their bad loans and stuff. So I had an impression that once I visit Sri Lanka, it will be completely in ruins, and the infrastructure would suck, and the people there would be like barely surviving. But my perception or my expectation was like flipped 180-degree, because when I visited Sri Lanka, people had a great civic sense. The infrastructure was awesome. मतलब सब चीज़ इतना इतना सही था. मैं when I was in Marissa, there was no traffic light. At least I couldn't see any traffic light. There were more foreigners than local in Sri Lanka, and सब chill like जी रहे थे अपना बोट like सर्फ बोर्ड उठा के सर्फिंग क्लास में इनरोल करके अपना लाइफ जी रहे हैं, बढ़िया लाइफ चल रहा है उनका. एंड देन आई केम बैक टू बैंगलोर एंड आई अगेन स्टार्टेड रैंटिंग, लाइक क्या रखा है भाई ज़िंदगी में. आई मीन इफ़ हर दिन यू हैव टू स्ट्रगल टू सर्वाइव, देन व्हाट्स द पॉइंट. But then today, while I was scrolling this Instagram reel, I came to a realization that who am I to point out these issues in Bangalore? I mean, मेरा परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है. जस्ट इमेजिन लाइक द सिनेरियो दैट मेरा परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, मेरा फुल फैमिली इज़ इन रांची. I could easily save the rent that I'm paying for this particular place, the house help and the cook etc. that I need for my day-to-day living. हर चीज़ ग्रॉसरी एवरीथिंग कैन बी सेव्ड इफ़ आई मूव बैक टू माई होम सिटी. बट मैं वो नहीं कर रहा हूँ. मैं वो क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि लिटरली अगर मैं रांची जाऊँगा तो मैं 3 दिन के बाद नहीं समझ पाता कि मैं वहाँ पे क्या करूँ. आई मीन अभी बैंगलोर में एक्सट्रीमली गर्म पड़ रहा है. लाइक
मैं अपने घर पे कॉल करता हूँ, बोलता हूँ कि बहुत गर्मी है, एसी लगाना पड़ेगा, ये वो दिक्कतें हैं, दे सिंपली से मी कि क्यों नहीं आ जा रहे हो भाई वापस, रांची आ जाओ वापस, जब इतना इशू है तो वर्क फ्रॉम होम ही है। मैं उनको कैसे बोलूँ भाई कि मैं रांची आके करूँ तो करूँ क्या? देर इज़ नथिंग दैट आई कैन डू। मतलब बैंगलोर में मेरा लाइफ इतना सॉर्टेड है कि इवन इफ एट टाइम्स आई डोंट हैव अ सोशल ग्रुप, आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स ऑन माई ओन। देर आर बैडमिंटन क्लब्स, कुछ नहीं तो प्लेओ से 1 घंटे का बैडमिंटन कोर्ट बुक करके यू गो एंड प्ले विथ रैंडम पीपल। वो नहीं है तो स्विमिंग करने के लिए मैं चला जाता हूँ, मेरे घर से 5 मिनट दूर देयर इज़ अ गेम थ्योरी स्विमिंग पूल, 1 घंटे का स्लॉट बुक करो एंड लाइफ इज़ सॉर्टेड। वो भी नहीं करने का मन कर रहा है, जिम का कल्ट ग्रुप क्लासेस है वहाँ चल जाओ, लाइफ अगेन इज सॉर्टेड। वो भी नहीं करने का है तो इतने सारे पार्क है, लाइक आई स्टे क्लोज टू डोमलूर, सो वहाँ से कबन पार्क इज़ नियर बाई एंड देर आर अगारा लेक, तो कहीं पे भी तुम जाओ एंड यू कैन डू सो मैनी एक्टिविटीज़। बट व्हेन आई एम इन रांची, मेरे को लिटरली शाम 6 बजे के बाद घर से निकलने में अजीब सा लगता था। मतलब मेरे को नहीं समझ में आता था कि मैं कहाँ जाऊँ, प्रोवाइडेड कि मैंने अपने लाइफ का 22 ईयर्स वहाँ पे जिया है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि आई रिलेट मोर टू बैंगलोर देन आई रिलेट टू रांची, एंड आई एम अ हिपोक्रेट इफ आई डोंट पॉइंट आउट दीज इशूज़ अबाउट झारखंड एंड जस्ट कीप रैंटिंग अबाउट दी इशूज़ इन बैंगलोर। मतलब जब मैं मेक माई ट्रिप में था, लाइक मेक माई ट्रिप वॉज द फर्स्ट कंपनी वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग, तो वहाँ पे आई सॉ अ न्यूज़ अराउंड झारखंड इन द कैफेटेरिया एंड आई वॉज फाइनली हैप्पी कि चलो कुछ तो झारखंड के बारे में लोगों को पता चल रहा है। एंड द न्यूज़ वॉज कि देवघर में देयर इज़ सम ब्रिज विच कोलैप्स्ड एंड मैनी पीपल डाइड। सो दैट डे आई रियलाइज कि झारखंड का केवल ट्रेजिडी ही लोगों को बैंगलोर में पता चल रहा है। मतलब कुछ अच्छा हो भी नहीं रहा है झारखंड में जो यहाँ के लोगों को पता चलेगा कि ओके ये डेवलपमेंट हो रहा है या ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसके बारे में मीडिया कवर भी करे। एंड जो भी मीडिया कवर कर रही है इट्स लाइक अ ट्रेजिडी, या ये दिक्कत हो गई या वो दिक्कत हो गई। तो जब ये हाल है कि इंडिया के अंदर लोग आपके स्टेट को नहीं पहचान रहे, तो इंडिया के बाहर लोग पहचानेंगे, इसका क्या मतलब, ये सोचना भी बहुत गलत है। तो मेरे को आज ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं वर्क फ्रॉम होम लेके बैंगलोर में बैठा हुआ हूँ और बैंगलोर के कंप्लेन कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई एम रनिंग अवे फ्रॉम माई होम स्टेट, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है एंड प्रोवाइडेड बैंगलोर ने मेरे को इतना कुछ दिया है। मतलब आई started as a software engineer in Make My Trip, then I switched to a fintech, then at present I'm an SD2 at Atlassian। इतना करियर ग्रोथ मिला मुझे, इतना मेरे को एक्सपोजर मिला, एंड इसके बाद भी मैं स्टेट के बारे में जब भी अपने दोस्तों से बात करूँगा तो आई जस्ट पॉइंट आउट दी नेगेटिव्स कि ये इशू है वो इशू है। एंड आई नेवर यूज टू डू डैट अबाउट झारखंड, क्योंकि मैं तो गिव अप कर चुका था झारखंड पे कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे कोई लाइफ होना। एक स्विमिंग पूल ढंग का ढूंढ दो, एक बैडमिंटन कोर्ट ढंग का ढूंढ दो वहाँ पे, अनलेस तुम कोई क्लब मेंबरशिप लाइक रांची क्लब का मेंबरशिप नहीं ले रहे हो या JSC स्टेडियम का मेंबरशिप नहीं ले रहे हो, तब तक इट्स नॉट पॉसिबल टू प्ले बैडमिंटन फॉर एन आवर जस्ट फॉर फन। तो ये सारे बेसिक इश्यूज़ हैं झारखंड में जिसको मैंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जस्ट बिकॉज कि वो मेरा साइट में नहीं है अभी, बिकॉज मैं वहाँ से हट चुका हूँ एंड मैं बैंगलोर में वर्क फ्रॉम होम में घर पे बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो या आई जस्ट वांटेड टू से दिस ऑन कैमरा, लाइक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, कि दिस इज़ अ हिपोक्रेसी एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू रेज आवर वॉइस कि हमारे होम स्टेट में भी कुछ डेवलपमेंट हो। मतलब मैं एक लौता नहीं हूँ जो झारखंड से यहाँ पे आके अपना लाइफ सेटअप कर रहा हूँ। देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स जो मेरे साथ मेरे कॉलेज में थे झारखंड में, एंड जस्ट FYI वाई आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस इशू बिकॉज आई डिड माई होल schooling like 10th 12th in Ranchi, then my BTech, like my bachelor's degree was also from Ranchi, from a college called BIT Mesra. So I have lived like 22 years in Ranchi, and उसके बाद भी अगर if I'm not raising my voice around the issues that are still prevailing in Ranchi, Jharkhand, so what gives me the right to say bad things about Bangalore? So yeah, this is the story of this video, and I think I should become more responsible and talk more openly about Jharkhand because इतना कुछ है झारखंड में भाई, इतना सुंदर सा जगह है, इतना रिच इन मिनरल, इतने सारे प्यारे वाटरफॉल्स है, बट स्टिल किसी को नहीं पता है। आई थिंक अभी रिसेंटली आनंद महिंद्रा या किसी ने ट्वीट किया था कि मतलब झारखंड इज़ स्टिल सो अनटच्ड एंड लोग उसके टूरिज़्म के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कोई पॉलिसी ही नहीं है, कोई उसको वहाँ पे प्रमोट ही नहीं कर रहा, तो कैसे लोग करेंगे उसके बारे में डिस्कशन।
मेरे को इतना ईजी होता है धोनी का रेफरेंस लेके अटलासियन में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना. लाइक आई हैव कलीग हु वर्क इन पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया एंड दे काइंड ऑफ रिलेट टू क्रिकेट. तो इट मेक्स माई लाइफ सो मच ईजियर कि मैं उनको धोनी का रेफरेंस दे के अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा पा रहा हूँ. बट उसके अलावा क्या है उस स्टेट में? ना ढंग का एयरपोर्ट है, ना ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई वैसा माइंडसेट है. मतलब अगर आप इलेक्शन का मैंडेट देखोगे तो सब बस फ्री में दे दो, फ्री घर दे दो, फ्री राशन दे दो, फ्री बिजली दे दो. कोई भी प्रोग्रेसिव थॉट नहीं है वहाँ पे कि डेवलपमेंट के लिए हम लोग ये लाएंगे, ये करेंगे. मैं जाता हूँ रांची तो मेरे डैड बोलते हैं कि अभी स्मार्ट सिटी बनने वाला है, अभी विप्रो TCS का ऑफिस खुल जाएगा. बट भाई वो मैं 5 साल से सुन रहा हूँ एंड ऐसा अभी तक कुछ हो नहीं रहा. एंड जितना मुझे पता है कि IIM रांची को कैंपस मिलने में 5-6 साल लग गया था क्योंकि वहाँ पे उन्हें ज़मीन नहीं मिल रही थी. तो भाई अगर ये हाल है तुम्हारे स्टेट का कि IIM रांची को 5-6 साल लग रहा है अपना कैंपस सेटअप करने के लिए, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे कोई भी ब्राइट माइंड रुकेगा और वहाँ पे सोचेगा कुछ करने का. So yeah, that's it about this video, and I hope that क्योंकि today is the election day, like आज रिजल्ट निकला वेस्ट बंगाल का, तमिलनाडु का. तो आई थॉट दिस शुड बी रेस टुडे कि भाई झारखंड का भी कुछ करो. भाई झारखंड में भी कोई अच्छे मैंडेट के साथ कोई अच्छा इलेक्शन करो, कुछ तो डेवलपमेंट करो कि एट सम पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई कैन थिंक टू गो बैक टू माई होम सिटी एंड मे बी कॉन्ट्रीब्यूट देयर. So yeah, that's about it in this video, and yeah, I'm planning to record more videos and upload more videos on YouTube. The videos can range from anything like my own experience from working in Make My Trip, like an Indian multinational company, then to a fintech which was a startup, then shifting to Atlassian, and I'm a SD2 here for past 2-3 years in Atlassian. So I'll cover those things. I'll cover like how I manage my finance. I'm a typical software developer, so I love to invest. I love to do things in my free time. So I'll cover all those things in these videos. And yeah, I hope that you guys will find it relatable. So thank you.